So technology adoption has seen a steep rise in COVID-19 times, and the new normal world includes very different things such as online entertainment, virtual house parties, rise of video conferencing apps, and much more. Hi, I'm Ashish Mittal, a technology consultant, and I have our guest today, Mr. Mukesh Bansal, who comes from a strong technology background and is founder of BTrack India Private Limited. Welcome, Mukesh ji. Thank you, Ashish ji. So before we discuss the recent rise of technology, Mukesh ji, I would request if you may please share an insight about BTrack and your core competency. So my name is Mukesh Bansal, as we said. I come from technology background. So if I tell you about my background, so I've done my BTech in computer science way back in 1992. Thereafter, I worked with various technology software companies, including Oracle. Thereafter, I got into business in the year 1998. So initially, we started our career with selling computers, servers, different IT projects. So our core and main organization, which we started in 2002, is Bansal IT Systems Private Limited. So we started our business in Bhiwadi. Thereafter, we moved to Gurgaon in 2006. So this BTrek is a venture which got into cloud computing. This we started in 2015 because we had been doing a lot of work in data centers. We had been doing a lot of work in IT infra with various large and mid corporates. So we thought of getting into cloud because this was the field, this was the thing which was coming up very fast, and everybody thought of getting into cloud, cloud computing. So thereafter we started this 2015, got into cloud, and it really picked well. So we saw that people are moving in, getting into the cloud since people are sitting from different remote locations. They are working from different places. Different organizations are merging up. So that is how cloud started. People are on to it now. So this is how we got into BTrek India. Okay, so that's interesting. So Mukesh ji, how do you see the cloud computing and cloud hosting in next 5 years? So अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से डिजिटाइजेशन के ऊपर एक फोकस आ रहा है और जिस तरीके से अभी रिसेंटली काफी ज्यादा राइज मिला ऑनलाइन एप्लीकेशंस को, तो ऑब्वियसली कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर इस्तेमाल होगी तो उसे होस्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइम को और आगे का जो फ्यूचर है, हम लोग आज जहां बैठे हैं वहां से आगे वाले फ्यूचर को अगर हम लोग देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि भी आने वाले 5 साल के अंदर क्लाउड होस्टिंग की क्या क्या सिचुएशन होगी? क्या इसके अंदर नई इनोवेशंस आएंगी? कैसा रहेगा आगे का टाइम? देखिए आशीष जी, ये बहुत क्लियर है कि आने वाले टाइम में एवरीथिंग विल मूव टू क्लाउड। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि जो पहले ऑन प्रमाइज होता था, जो आपका सेटअप सारे के सारे आपके ऑन प्रमाइज में सर्वर्स होते थे या टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट होता था, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट सारा का सारा डाटा सेंटर में मूव हो गया, क्योंकि नोबडी वांट्स टू गेट इनटू हैजल्स। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज्ड, और उसको जो मैनेज करना है ना, आपको अपने ऑफिस में मैनेज करना है, 24/7 मैनेज करना है, वो टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए, हाई इंटरनेट अवेलेबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए, और दुनिया भर के टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट चाहिए, जो कि डाटा सेंटर में बाय डिफॉल्ट होता है। तो आने वाले टाइम में सब कुछ डाटा सेंटर पे मूव हो जाएगा। प्लस इंपॉर्टेंट ये कि अपने आप को बैकअप रखने से लेकर उसको सारा का सारा मैनेजमेंट है, मैनेज सर्विसेज है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज सर्विस। मैनेज सर्विसेज को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि डाटा सेंटर में ये सब चीजें, दिस इज ए डिफॉल्ट थिंग विच इज डन बाय डाटा सेंटर पीपल और पीपल लाइक अस हु आर enabling the customers. We are the enablers between data centers and the customers. तो आने वाले टाइम में हर चीज क्लाउड पर जाने वाला है। दूसरा, जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलेबिलिटी के लिए अगेन यू नीड ए डाटा सेंटर। ओके। हाई अवेलेबिलिटी के लिए अगेन यू नीड ए डाटा सेंटर, यू नीड ए क्लाउड सर्विस। ओके।
ओके। तो हाई अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ अगर हम अपने ऑन प्रेमाइज करते हैं तो हाई अवेलेबिलिटी को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। हम्म। जबकि डेटा सेंटर में प्रोसेसेस आर सो वेल डिजाइंड, एसओपीज आर वेल डिफाइंड, which हम्म। is very strict and it can be managed very well at data center. हम्म। तो आने वाले टाइम में आई सी कि देखिए एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, इंक्लूडिंग योर सेल्स, योर परचेज, योर टेंडरिंग, इवन गवर्नमेंट इज बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम जेम। इवन आने वाले टाइम में ना पान वाला भी विल गेट ऑन टू द ऑनलाइन मोबाइल ऐप एंड विल स्टार्ट सेलिंग थिंग्स ऑनलाइन। इवन यू सी डॉक्टर्स आजकल कंसल्टेंसी जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक है? है। अभी हम और आप जो बात कर रहे हैं दैट इज अगेन एन ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो इस तरीके से एवरीथिंग इज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज गोइंग टू बी अ कॉमन फीचर। डिड यू एवर नोटिस कि कोविड से पहले हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग करते थे और आज की तारीख में कॉन्फ्रेंस करने से या ऑनलाइन डिस्कशन करने से वी आर सेविंग ऑन टाइम, वी आर सेविंग ऑन रिसोर्सेज, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द टाइम वेरी वेल। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग एंड थिंग्स बिल्कुल। विल, मतलब आने वाले टाइम में विल नॉट ओनली सेव मनी थ्रू दिस, will make use of the technology very well. हम्म। तो अगर मैं इसे एक समराइज्ड वे में एक नक्शल में बोलूं तो मेरे ख्याल से शायद कोई भी ऐसा बिजनेस डोमेन नहीं रहेगा जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से अछूता रहे। मतलब एवरीवन विल हैव टू बी ऑन इंटरनेट सून। Yes. जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि इवन पान वाला भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, तो तकरीबन हर आदमी क्लाउड के ऊपर आना ही उसे पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं इसको जिस तरीके से समझाऊं, जैसा आपने बताया मुकेश जी, तो मैं इसे मोर और लेस ऐसा समझ रहा हूं जैसे कि रियल एस्टेट। तो आज के टाइम में जो वैल्यू एक रियल एस्टेट की है, मेरे ख्याल से डेटा सेंटर्स जो हैं वो अपने आप में रियल एस्टेट है, एंड एवरीवन हु इज कमिंग ऑनलाइन will have to find a space for himself to be online. Absolutely, absolutely. और एक चीज इसके अंदर जो मेरा एक खास यहाँ पे एक सवाल है मुकेश जी, कि कुछ कंपनीज जो हैं उनका एक ये कंसर्न रहता है कि इफ यू पुटिंग आवर डेटा ऑन somebody's else server, may that be any cloud hosting space, so they always show their concern as to how safe is their data. So like what are those precautions which generally a data center or a company like VTrack takes to ensure that there is no loss of security for anyone's data if they are putting the content on your location? या तो सबसे पहले तो ये है कि डेटा सेंटर में जो हम लोग डिजाइन करते हैं या डेटा सेंटर्स डिजाइन करते हैं, पहली बात तो हम लोग डाटा का एक्सेस हमारे पास भी नहीं होता है, तो इट इज बेसिकली कंटेनर एक्सेस। ओके। तो कंटेनर जो होता है वो चारों तरफ से इस पे बॉक्स, तो उसके लिए जो एक्सेस है वो क्लाइंट या क्लाइंट की टीम ही एक्सेस कर सकती है, और वो जो एक्सेस होता है दैट इज इधर थ्रू वीपीएन और इंक्रिप्टेड चैनल। और जो डाटा होता है, डाटा का जितना भी बैकअप होता है, अच्छा यहाँ पे डाटा सेंटर्स में क्या होता है कि सारे बैकअप्स एक पीरियडिकली इनका सबका बैकअप होता है, इधर इट इज डेली और 6 आवर्स और 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, एंड एट टाइम्स इट इज डीआर। तो डीआर में क्या होता है कि एट ए टाइम लोड बैलेंस करके मल्टीपल सर्वर्स आर वर्किंग एट ए टाइम। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कंटेनर का बैकअप है तो एक्सेस इज नॉट विद अस, वी हैव द एक्सेस ऑफ द कंटेनर एंड वी आर जो कंटेनर है दैट इज इनक्रिप्टेड। और इनक्रिप्टेड होने की वजह से वी कैनॉट गेट इनटू, वी और एनीबॉडी कैनॉट गेट इनटू द कंटेनर विदाउट हैविंग द क्रेडेंशियल्स और रिक्विजिट परमिशंस। सेकेंडली, वी साइन अप एनडीए विद द कस्टमर्स। ओके। ओके। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बॉडी आज की तारीख में एश्योर करती है कि इफ एनीथिंग गोज विद द डाटा लीकेज, data centers or people like us are responsible for any data theft if there is any at our level. उसके बाद जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज ये भी हैं कि डाटा सेंटर से एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू लिमिट द एक्सेस ओनली टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन डू दैट, that this particular container can be opened only at your premises, only at certain place, तो उसको भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं। So there are multiple things including encryption, SSL and container and backup at multiple intervals at multiple locations. Okay. तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि डाटा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सके, किसी भी तरह की दिक्कत हो सके।
डेफिनेटली, बिल्कुल। और एक एक खास बात, जैसे अगर आप देखें तो बहुत फेमस प्लेयर्स जो हैं इंडिया के अंदर आज के टाइम में, जो SaaS एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं या जो क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं जो कंपनीज, सो मोस्ट ऑफ देम हैव देयर प्रेजेंस इन इंडिया दो, बट देन दे आर नॉट इंडियन ओरिजिनेटेड कंपनीज। व्हाइल रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आह्वान किया कि लोकल इज न्यू एंड वी हैव टू स्टार्ट स्वदेशी, सो ऐसे केस के अंदर what do you think like will be an impact on the Indian companies dealing in this business domain, companies like VTrap who are local and are providing similar services? Yeah. So सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी ये लॉज आ गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बाइंड किया है कि हमारा इंडिया का डाटा इंडिया में ही होगा। ब्यूटीफुल। तो और डाटा सेंटर सब इंडिया में बहुत सारे हैं। There are n number of data centers available in the country. तो हम लोगों के भी जो hosting servers हैं वो इंडियन डाटा सेंटर्स नहीं है। Okay. तो we are 100% local. And being Indian, we prefer कि हमारा सारा का सारा डाटा इंडिया में ही हो। और we are 100% abiding by the law of the country, law of the land, कि जिसमें कि there is no chance that we are going out of the country unless there is a specific requirement for an international customer, which are there at times. So otherwise for especially for आपका जितना भी financial data है उसके लिए तो allowed ही नहीं है कि you keep your data out of the country. Awesome. We are going by all the laws of the land. Okay. Okay. और जो कोविड के दौरान या लॉकडाउन के दौरान, हालांकि हम इस बारे में बात कर चुके that since technology has seen a steep rise in growth because of this lockdown, so definitely मैं ये presume करता हूँ कि there must have been a rise in usage of the cloud services, but like if I want to know specifically around this particular thing from you कि hosting services को लेके इस लॉकडाउन और कोविड के टाइम पे आप लोगों के लिए कैसा माहौल रहा, मतलब how is it going for you? Yeah, so this has been a very positive period for us. So we have onboarded, I think we have grown by 300% during this period of time because everybody was in lockdown state और सबको अकाउंटिंग तो कम से कम करना ही था, फाइनेंशियल डाटा तो कलेक्ट करना ही था। और काफी लोगों के जो बिजनेसेस ऑनलाइन हैं या कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में थे या नॉन एसेंशियल सर्विस वालों ने भी सोचा कि क्यों ना डाटा को क्लाउड पर भी मूव कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट टाइम था, उन्होंने क्लाउड पे मूव कर लिया। नाउ दे हैव लर्नड कि व्हाई नॉट दे हैव डन दिस अर्लियर, क्योंकि अब नाउ दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। नाउ देयर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। ओके तो आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि पीपल हैव लर्नड टू गेट ऑन टू द क्लाउड और साथ साथ में लोगों को और सबको इंक्लूडिंग अस वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे को ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली और क्लाउड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एसेंशियल सर्विस नाउ। सो दिस हैज बिकम ए नेसेसिटी. This is not a luxury. This has become a necessity for everyone. This has become a necessity now. Yes. So there had been a turmoil in the whole industry worldwide because of this COVID reason. While there are some sectors which have seen a confirmed and promised future, तो ऐसे टाइम में आपका एक मैसेज जो कि आप स्टार्टअप्स के लिए देना चाहें और ये बताना चाहें कि भी how should they proceed and how do you visualize the future and let a message be given to the startups and the budding entrepreneurs? सबसे पहले तो ये है कि आने वाले टाइम ऑनलाइन का है, ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन में फायदा ये है कि यू डू नॉट हैव द बाउंड्रीज, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। श्योर, यस, देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो अच्छा, दूसरा ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो वी डू नॉट हैव एनी लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ ईदर वर्किंग फॉर सेल्फ, गेटिंग कस्टमर फ्रॉम द आउटसाइड और रीचिंग द रीजंस। तो सारी चीजें हमारी जो है ना वो फ्लेक्सिबल हैं। तो आने वाले टाइम में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी काम को हम करेंगे, जैसे कि मैंने पान वाले का एग्जांपल दिया, तो पान वाला 50 किलोमीटर दूर भी पान बेच सकेगा, नहीं तो उसको वेट करना पड़ेगा कि उसकी शॉप पे कोई आएगा और पान खरीद के जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऑप्शन ही नहीं है।
everybody ऑप्शन will नहीं है have to go बिल्कुल। online. Everybody will have to be there on the cloud. And हम्म, cloud is the backbone for all the cloud applications. हम्म, चाहे उसके लिए मोबाइल ऐप्स करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करें, चाहे कुछ भी करें, क्लाउड इज ए बैकबोन. इट इज लाइक ए रियल एस्टेट एज यू सेड. हम्म, तो ये रियल एस्टेट है. बिल्डिंग बनाने के लिए रियल एस्टेट तो चाहिए ही चाहिए, क्लाउड चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। Fine. So thank you very much for your precious time, Mukesh ji. It was pleasure talking to you. Thank you And very much. It was my uh, pleasure also. We had a very nice discussion on the subject. thank you, ji. Thank you.